السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھے تھے مد متصل کا قاعدہ، مد متصل کس کا رول کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اس کا قاعدہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مد منفصل۔ مد کی 3 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ تو دوسری قسم مد منفصل کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور جو بندہ پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں مد متصل کا قاعدہ، وہ پچھلا سبق دیکھ کر کے وہ مد متصل کا قاعدہ پورے اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ بہرکیف مد متصل کا قاعدہ آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے جو بیان کیا ہے مد منفصل کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد والا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ کیا؟ حرف مد کے بعد، حرف مد معلوم ہے آپ لوگوں کو، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ اگر الف مدہ یا مدہ یا واو مدہ آئے تو اس کے بعد جو ہے نا اگر حمزہ ہوتا ہے تو وہ مد وہاں ہوتا ہے، یعنی ایک الف سے زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اور الف مدہ یا مدہ واو مدہ اگر آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر الف مدہ یا مدہ واو مدہ کے بعد اگر حمزہ آتا ہے تو وہ بھی حرف مد ہے، لیکن اس کے بعد اگر حمزہ آتا ہے تو پھر وہاں پر مد ہوتا ہے، یعنی مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو اب کس کس صورت میں کون سا مد ہوتا ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ حرف مد کے بعد یعنی الف مدہ یا مدہ واو مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، جو پچھلے سبق میں بتائے تھے۔ اور اگر حرف مد کے بعد میں دوسرے کلمے میں، حرف مد کے بعد دوسرے کلمے میں اگر حمزہ ہو تو مد منفصل ہوگا۔ کیا اس کا نام ہے؟ مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ دیکھو حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ مطلب قوسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب، یعنی مطلب بیان کر رہا ہے۔ مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ اس کی مقدار ہے 2 سے 2.5 الف یا 3 الف یا 3.5 الف، مطلب 2 الف سے زائد اس کو کھینچنا، 2 سے 2.5 الف عام طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ایک چیز آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ حرف مد کے بعد، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ فی ہے، اوکے، یہ حرف مد ہے، یعنی یا مدہ سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، یعنی حرف مدہ۔ حرف مد کے بعد اگر دوسرا کوئی حمزہ کے علاوہ دوسرا کلمہ آتا ہے، یعنی دوسرا حرف آئے گا اگر حمزہ کے علاوہ، تو وہاں پر صرف اور صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی یا مدہ ہی صرف ہوتی ہے۔ لیکن اگر حرف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا، مثال کے طور پہ حمزہ آ جائے گا، یعنی الف کے اوپر کوئی سا بھی حرف زبر زیر میں حرکت داخل ہوتی ہے تو حمزہ اس کا نام ہو جاتا ہے۔ آیا حمزہ کسی بھی شکل میں ہو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حمزہ آ گئی تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، اب یہ یا مدہ کے اوپر کیا لکھا جائے گا؟ مد لکھا جائے گا۔ اس طریقے سے لکھا آتا ہے۔ جہاں پر حرف مد ہوگا یعنی الف مدہ یا مدہ واو مدہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہوگا کوئی سا بھی حرف، وہ حرف اگر حمزہ ہوگی تو یہاں پر مد لکھا جائے گا۔
यानी ये आपको बता दिया कि यहाँ पर मद होगा, यानी एक अलिफ से ज़्यादा पढ़ना है आपको। अगर हमज़ा नहीं रहता, दूसरा चीज़ रहता, तो फिर दूसरा हर्फ होता तो सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींच करके या मद्दा ही होती, समझे। ये आप सबको मालूम शायद नहीं होगा, इसलिए हम बता दिया आपको। तो पहला चैप्टर आपकी किताब वालों ने दिया है फ़ी अमरिना। क्या? फ़ी अमरिना। अब देखो, ये हर्फ मद के बाद ये हर्फ है, ठीक है। उसके बाद ये जो अमरिना जो है ये दूसरा कलीमा है। हर्फ मद के बाद दूसरे कलीमे में हमज़ा आ गया तो इसका नाम क्या हो गया? मद्दे मुनफस्सिल। मद्दे मुनफस्सिल, इसका नाम क्या हो गया? मद्दे मुनफस्सिल। यानी हर्फ मद के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलिमों में आता है तो मद्दे मुनफस्सिल होगा, और मद्दे मुनफस्सिल को 2 से ढाई अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। यहाँ पर बोलेंगे मद्दे मुनफस्सिल होगा, इसलिए कि हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमों में है, इसलिए मद्दे मुनफस्सिल होगा। मद्दे मुनफस्सिल को 2 से ढाई अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे कि फ़ी अमरिना। ओके, समझ में आ गई बात। उसके बाद दिया हुआ है आपकी किताब वालों ने ला इलाहा। ओके, देखो ये या मद्दा की मिसाल थी। या मद्दा के बाद जो हमज़ा आई, उसके बाद या मद्दा यानी हरफ मद, उसके बाद है ला इलाहा। ला, ये भी अलिफ मद्दा हो गया, ये भी हरफ मद ही है। अब इसके बाद देखो लिखा अगर आएगा हमज़ा, समझ, ला इलाहा, इलाहा। ओके, ला इलाहा। अब ये हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में आ गया, तो यहाँ पर हमको मद लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यानी एक अलिफ से ज़्यादा पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर नहीं खींच कर पढ़ेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा खींचेंगे। ये इसका ये है, समझे। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे? ला इलाहा। ओके, समझ में आ गई बात। हर्फ मद के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलिमा में है तो मद्दे मुनफस्सिल होगा। तो ऐसे इजरा इसका इस तरीके से करोगे, मद्दे मुनफस्सिल होगा, इसलिए कि हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा में है, इसलिए मद्दे मुनफस्सिल होगा। मद्दे मुनफस्सिल को 2 से ढाई अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे ला इलाहा। ओके, समझ में आ गई बात। उसके बाद दिया हुआ है इन्ना अनज़लना, है ना। ये हरफ मद है, यानी हरफ मद्दा है। इन्ना अनज़लना, अनज़लना। देखो हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में दे दिया, मद हो गया। इस तरीके से अगर हमज़ा आएगा अलिफ मद्दा या मद्दा व मद्दा के बाद अगर हमज़ा आएगा तो समझ लेना कि वहाँ पर मद लिखा हुआ ही आ जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा अलिफ के बराबर, एक अलिफ से ज़्यादा खींच करके पढ़ेंगे तो इसका मिक़दार मद्दे मुनफस्सिल अगर होगा तो 2 से ढाई अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। मद्दे मुत्तसिल होगा तो 2 ढाई से 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ इन्ना अंज़लना, यहाँ पर एक फ़ाए हकीकी होगा। देखो कैसे बोलोगे? मद्दे मुनफस्सिल होगा, इसलिए कि हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा में है, इसलिए मद्दे मुनफस्सिल होगा। मद्दे मुनफस्सिल को एक अलिफ के बराबर 2 से ढाई अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे इन्ना अंज़लना। समझ में आ गई बात। ये जो आपके किताब वालों ने दिया था वो हम पता है। अब आपको मिसाल देता हूँ कुरान शरीफ में आकर के, इसलिए कि आप लोग गलती कर देंगे आगे चल के। यूट्यूब किताब में लिखा हुआ है, जैसे कि आपको लिखा हुआ आएगा निस्फ़हू औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला। सूरह मुज़्ज़म्मिल के अंदर में है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हू। आप सुने होंगे फजर की नमाज में इमाम साहब पढ़ते हैं अक्सर व बेशतर, तो निस्फ़ हु, हाँ उल्टा पेश हु है, क्या है? निस्फ़ हु, हाँ उल्टा पेश हु है। तो अविन है, क्या है? अ विन।
अविन कुस, ओके। अविन कुस मिन्हु कलीला आगे दिया हुआ है। अब ये हर्फ मद, ये भी हर्फ मद हो गया। यानी आपको बताया था कि हर्फ मद किसी भी शक्ल में आएगा, यानी अलिफ मद्दा या मद्दा, ये उल्टा पेश वो मद्दा के बराबर होता है, तो यहाँ पर हर्फ मद हो गया। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा देखना, आप लोग गौर करना, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मद, समझे। इसलिए कि हर्फ मद के बाद यानी वो मद्दा के बराबर उल्टा पेश भी होता है, तो वो उल्टा पेश हो या खड़ी ज़ेर हो या खड़ा ज़र हो, वो हर्फ मद ही कहलाता है। उसके बाद अगर हमज़ा आ जाएगा तो फिर अब देखना है हमज़ा इसी कलमा में है या दूसरे कलमा में, ये देख करके आपको कायदा जारी करना है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर्फ मद के बाद यानी वो उल्टा पेश वो मद्दा के बराबर होता है, वो मद्दा के बाद यानी हर्फ मद के बाद वाले हर्फ पर हमज़ा आ रहा है, यानी बाद जो है हमज़ा वो दूसरे कलिमा में, ये एक दूसरा कलिमा, ये एक दूसरा कलिमा है, तो हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम मद्दे मुनफ़सिल होगा, बिला झिझक हम कह देंगे और 2 से 2.5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। जैसे निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, ओके, इस तरीके से पढ़ना है। ये एक मिसाल दे दी है, इसी तरीके से और बहुत सारी मिसाल है कुरान शरीफ के अंदर में। बहर कैफ़ देखो मद्दे मुनफ़सिल का कायदा आज के सबक में हम पढ़ लिए। अब कल के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोगों को बताएंगे मद्दे लाजिम का कायदा, जो कि थोड़ा कठिन है, लेकिन हम इंशाअल्लाह बहुत ही आसान तरीके से, इल्लीगल तरीके से आपको बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बहर कैफ़ जो भी बंदा अगर हमारे चैनल पर नहीं आए तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब करते चले जाए, ताकि आने वाले वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वीडियो को शेयर करते चले जाएँ भाई।